So we are going to discuss about the bypass factor of the heating and cooling coil. Here we have got the either heating coil. Here it is in figure it is given. This coil may be heating coil, this coil may be cooling coil. We have already discussed that temperature of the air coming out of the apparatus TD2 will be less than the TD3 in case the coil is heating, and TD3 in case of coil is cooling, TD3 mode. It means the air which is passing through this duct, coil is given over here and the temperature of coil is TD3. Okay. Now the air which is coming inside, 1 kg of air is coming over here. Part of that air is passing through without touching the coil, it is passing through and going away, and part of the air which is touching the coil, then it is going away. So total will be 1, but a part of that 1 has been taken x. X is bypassing and 1 minus x is passing through the coil. Okay. So a detailed consideration will show that when the air passes over the coil, some of its x just bypass unaffected, while the remaining 1 minus x kg comes in direct contact with the coil. This bypass process of air is measured in terms of bypass factor. The amount of air that bypasses the bypass factor depend upon the following factors. Bypass factor किस चीज़ पर डिपेंड करता है? The number of fins provided in the unit length, number of the fins, the coil, the pitch of the cooling coil, how much is the number of the coil in 1 inch or 1 meter, 1 centimeter or like that. Secondly, the number of row in a coil in the direction of the flow. Number of row, how many rows of the coil is there in the direction of flow. Second, the number of, third, the velocity of the air which is flowing. Here, if the flow rate is normal, so just without any blower, if suppose some blower is there, then the rate of flow will be increased. If it is not, if there is no blower at all, ordinary air is allowed to pass through it, then the rate of the air will be decreased. So depend upon how the air is passing through the coil. If we provide a blower, the air flow will be higher. It may be noted that bypass factor of the cooling decreases with decrease in the spacing and increase in the number of row. है ना? Of course, अगर bypass factor जो डिपेंड करेगा अगर number of rows coil के बढ़ा दिए जाए तब, और या number of rows coil के घटा दिए जाए, या साइज कॉइल का बढ़ा घटा दिया जाए, तो उसके हिसाब से बाईपास फैक्टर उसके ऊपर डिपेंड करेगा. अब बैलेंस करें एंथैल्पी को दोनों साइड पर, तो x इंटू सी पी एम टी डी वन इधर है, सी पी एम इज योर गिवन एंड दैट इज़ योर ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट, उसकी वैल्यू 1.022 होती है, प्लस ये तो एयर x एयर जो है कॉइल के थ्रू जो पास कर रहा है, 1 माइनस एक्स सी पी एम टी डी थ्री, ये एयर ये एयर जो बाईपास कर रहा था x, और 1 माइनस एक्स जो कॉइल के थ्रू पास कर रहा है, वो दोनों निकलेंगे बाहर, तो 1 इंटू सी पी एम इंटू टी डी वन, तो टी डी वन जो हो गया वो टी डी टू जो हो गया इधर बाहर में जो निकल रहा है. 1 kg ऑफ एयर कंसिडर किया गया है, तो इसको हम ट्रांसपोज करके वैल्यू निकालें x की, तो x की वैल्यू आएगी TD3 माइनस TD2 डिवाइडेड बाई TD3 माइनस TD1. इस तरह से हम बाईपास फैक्टर की वैल्यू जान सकते हैं. अब दो चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए कि TD3 हीटिंग कॉइल है तो TD3 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन TD2. TD3 जो होगा वो TD2 से हमेशा बड़ा होगा, और अगर ये कूलिंग कॉइल है तो TD2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन TD3. तो दोनों केस में दिया हुआ बाईपास फैक्टर TD3 माइनस TD2 एंड TD3 माइनस TD1 व्हेन द कॉइल इज हीटिंग कॉइल, और जब कूलिंग कॉइल है तो TD2 माइनस TD3 डिवाइडेड बाई TD1 माइनस TD3 जब कूलिंग कॉइल है. द बाईपास फैक्टर फॉर हीटिंग और कूलिंग कॉइल में आल्सो बी ऑब्टेन एज डिस्कस. इससे भी हम बाईपास फैक्टर निकाल सकते हैं. लेट द एयर पास ओवर द हीटिंग कॉइल सिंस द टेम्परेचर distribution of air passing through the heating coil is shown in the figure 16.19. Therefore, sensible heat given out by the coil is giving sensible heat, that is the U, that is U is your factor of the coil
AC is the area and TM is the temperature, logarithm mean temperature, logarithm mean difference temperature. U ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हो जाता है, U की वैल्यू. AC सरफेस एरिया ऑफ द कॉइल हो जाता है. TM लॉगरिथम मीन टेम्परेचर डिफरेंस. ये आपने पढ़ा होगा हीट ट्रांसफ़र में भी, थर्ड ईयर में हीट ट्रांसफ़र में भी पढ़ा होगा लॉगरिथम मीन टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है. तो इस तरह से TM की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉगरिथम मीन टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर TD2 माइनस TD1 डिवाइडेड बाई log E 1/, बाईपास फैक्टर. बाईपास फैक्टर आपका मालूम है TD3 माइनस TD2 डिवाइडेड बाई TD3 माइनस TD1. इस तरह से हमने यहाँ लिखा TDM की वैल्यू, दैट इज़ TD2 माइनस TD1 डिवाइडेड बाई log 1/, बाईपास फैक्टर. ओके. नाउ इक्वेशन 1 may also be written as equation 1. Let us see. That is Q is equal to U AC TM. इसको हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू U AC TM की जगह पर हमने डाल दिया है log मीन टेम्परेचर डिफरेंस, log मीन टेम्परेचर डिफरेंस लिख दिया उसकी जगह पर, TM की जगह पर. तो इस तरह से वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द हीट एडेड ड्यूरिंग द सेंसिबल हीटिंग M इंटू S इंटू T भी तो होता है. सेंसिबल हीटिंग में हीट जो ऐड होता है दैट इज़ आल्सो इक्वल टू M इंटू S इंटू T. तो यहाँ पर हो गया आपका M हो गया मास ऑफ द एयर, CPM स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और T2 माइनस TD1 दैट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस. CPM की वैल्यू 1.022 होती है, स्टैंडर्ड है. M है मास ऑफ द एयर पासिंग ओवर द कॉइल हो गया. तो इस तरह से इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन जो है इसको इक्वेट कर दें अगर हम, तो हमारे पास बचेगा क्या, log E 1/BPF 1/, बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू UA/NA इंटू CP. इस तरह से हम देखते हैं कि log E BPF UA/NA इंटू CPM और BPF अगर एंटी लॉग ले लें तो E रेज़ टू पावर माइनस UAC/NA इंटू CPM या E रेज़ टू पावर माइनस UAC/CPM की वैल्यू मालूम है 1.022 इंटू MA. Proceeding in the same way as discussed above, we can derive the equation 4 for the cooling coil. कूलिंग coil का भी इसी तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं. फ़र्क क्या हो जाएगा कूलिंग coil के लिए, सिर्फ हमारा ये LMTD में फ़र्क आ जाएगा बस. LMTD में भी बाईपास फैक्टर दैट विल बी TD2 माइनस TD3 हो जाएगा एंड TD1 माइनस TD3 हो जाएगा, बाकी सब चीज़ नहीं रहेगा. तो इस तरह से हम कूलिंग कॉइल के लिए भी बाईपास फैक्टर करके बाईपास फैक्टर निकाल सकते हैं. तो बाईपास फैक्टर की दो वैल्यू आ रही है, एक तो यहाँ से आ रही है BPF इज इक्वल टू UAC/1.022 MA और दूसरी बाईपास फैक्टर की वैल्यू हमारे सिर्फ टेम्परेचर से कूलिंग और हीटिंग TD3 माइनस TD2 डिवाइडेड बाई TD3 माइनस TD1, दूसरा TD3 माइनस TD1 डिवाइडेड बाई TD1 माइनस TD3. तो इस तरह से हम बाईपास फैक्टर की दो वैल्यू हम पा रहे हैं. नाउ एफिशिएंसी ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग कॉइल क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ द हीटिंग कॉइल दैट इज कूलिंग इफेक्ट दैट इज 1 माइनस बाईपास फैक्टर. ठीक है, तो 1 माइनस बाईपास फैक्टर हो गया 1 माइनस हीटिंग के केस में TD3 माइनस TD2 TD3 माइनस TD1. LCM ले लिया जाए तो हमें बचेगा TD2 माइनस TD1 डिवाइडेड बाई TD3 माइनस TD1. उस तरह से कूलिंग कॉइल के लिए अगर लें तो 1 माइनस TD3 माइनस TD2 माइनस TD3 डिवाइडेड बाई TD1 माइनस TD3. LCM ले लें तो हमारा TD2 यहाँ पे हमारा TD3 कट जाएगा, TD1 माइनस TD2 डिवाइडेड बाई TD1 माइनस TD3. इस तरह से हम एफिशिएंसी ऑफ हीटिंग कॉइल भी निकाल सकते हैं. बाईपास फैक्टर मालूम है तो एफिशिएंसी ऑफ हीटिंग कॉइल भी निकाला जा सकता है. अब एक न्यूमेरिकल देखें, एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम, उसी से रिलेटेड है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर बाईपास फैक्टर. बाईपास फैक्टर जो कि दो तरीके से बाईपास फैक्टर निकला हमारा. एक तो हमारा बाईपास फैक्टर था E रेज़ टू पावर माइनस UAC/1.022 MA और दूसरा था टेम्परेचर के हिसाब से TD3 माइनस TD2/TD3 माइनस TD1 फॉर हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल के लिए TD2 माइनस TD1 डिवाइडेड बाई TD1 माइनस TD3 फॉर कूलिंग कॉइल. ये दोनों अलग अलग थे. तो इस तरह से हम बाईपास फैक्टर जो है अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं. अब हम न्यूमेरिकल थोड़ा सा एक ले रहे हैं, उसी से रिलेटेड है. In a heat application, moisture air enter a steam heating coil
at 10 degree centigrade and 50% RH and leaves at 30 degree centigrade. Determine the sensible heat transfer if the mass flow rate of air is 100 kg of dry air per second. Also determine the steam mass flow rate of the steam enters saturated at 100 degree centigrade and condensate having 80 degree centigrade. तो इस तरह से हमारा एक न्यूमेरिकल है छोटा बाईपास फैक्टर के ऊपर। इंटरिंग एयर के बारे में हमें दे रहे हैं TD1 10 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%, विद TD2 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मास ऑफ द एयर 100 kg पर सेकेंड और TS 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, रेट फ्लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सैचुरेटेड टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ, फिर TC हमको दिया हुआ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क द इनिशियल कंडीशन ऑफ द एयर। अब हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट लेंगे। साइक्रोमेट्रिक चार्ट हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बीच में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क द इनिशियल कंडीशन ऑफ द एयर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट एट 0.1 मिल गया। ये 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 और 10 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये पॉइंट हमको मिल गया। एज शोन फिगर, ड्रॉ ए कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन फ्रॉम 1। कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन ये होगी फ्रॉम 1 इंटरसेक्ट द वर्टिकल लाइन ड्रॉन थ्रू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कांस्टेंट ह्यूमिडिटी लाइन तो यही होगी, 1 से 2 जाएंगे, 30 डिग्री को जहाँ कट कर दिया। ड्राई बल्ब टेम्परेचर 0.2, द लाइन 1 टू रिप्रेजेंट द सेंसिबल हीटिंग ऑफ द एयर। तो एयर की सेंसिबल हीटिंग हो रही, 1 से 2 जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा। सबसे पहले हमने 0.1 पर हमने 1 पॉइंट को मार्क किया, 50% RH 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, आगे जा रहे हैं, 30 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर को 0.2 पर कट कर लेंगे। फ्रॉम द साइक्रोमेट्रिक चार्ट वी फाइंड द एंथैल्पी एट 0.1 इज इक्वल टू H1 19.3 kJ per kg ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, फिर एंथैल्पी एट 0.2 H2 इजिकल टू 39.8 kJ per kg ऑफ ड्राई एयर। ये सब चीज़ें हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, अगर सॉरी WBT की लाइन के साथ चले और H1 H2 की वैल्यू हमको एंथैल्पी स्केल पर मिल जाएगी। वी नो दैट सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र Q इजिकल टू MA H2 माइनस H1। सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र H2 माइनस H1 हो रहा, मास हमको मालूम है, यहाँ पर रख दिया हमने 39.8 माइनस 19.3, तो आ गया 2050 kJ पर सेकेंड। ये हमारा आ गया हीट ट्रांसफ़र, सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र। नाउ स्टीम मास फ्लो रेट हमको निकालना है। फ्रॉम द स्टीम टेबल करस्पॉन्डिंग टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड वी फाइंड दैट द एंथैल्पी ऑफ द सैचुरेटेड स्टीम, ये हो गया, एंड एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेट स्टीम एट 80 डिग्री, ये दोनों हम स्टीम टेबल से पता कर सकते हैं। HS दैट इज़ द स्टीम टेबल करस्पॉन्डिंग टू 100 डिग्री एंथैल्पी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा ये हो गया हमारा कंडेंसेट एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों हमको पता चल गया। तो स्टीम मास फ्लो रेट कैसे निकलेगा, टोटल हीट तो हमको मालूम 2050 डिवाइडेड बाई Hg माइनस HF, और Hg हमको दिया हुआ 2676 माइनस 334.9, तो ये हम Q अपॉन Hg माइनस HF कर दिए, तो निकल गया 0.8756 kg पर सेकेंड। अब ये kg पर सेकेंड में निकला है, इसको आवर में चेंज करना है, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकल गया 3152 kg पर आवर। इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो गया। एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखें, ए क्वांटिटी ऑफ एयर हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 300 मीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड वेल बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, is heated to 40 degree centigrade dry bulb temperature. Estimate the amount of heat added, final relative humidity and wet bulb temperature. The air pressure is 1.01325 bar. Given अब क्या क्या दिया हुआ है, V1 दिया हुआ 300 मीटर क्यूब, फिर TD1 दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, TW दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज द TW वेट बल्ब टेम्परेचर, एंड TD2 दिया है और 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर PB दिया है दैट इज़ द एयर प्रेशर 1.013। ये सब चीज़ें हमको दी हुई हैं।
First of all, mark the initial condition 30 degree dry bulb temperature and 25 degree wet bulb temperature on the cyclometric chart. Point number one इस पर मार्क किया हमने 25 और 30 पर। उसके बाद 25 और 30 पर मार्क हो गया है हमारा। उसके बाद फिर point number 1 is draw a constant specific humidity line 1 to intersect the vertical line through 40 degree centigrade dry bulb temperature. 1 2 the line 1 2 represent the sensible heating line. sensible heating हो रही है क्योंकि हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होने के बाद जो सीधा हम बढ़ा दिया हॉरिजॉन्टली तो 40 डिग्री की लाइन जहाँ कट कर रही है वो हमारा आ जाएगा 30 डिग्री सेंसिबल हीटिंग का लाइन 1 2 हो गया। ठीक है, तो अब फ्रॉम द साइक्रोमेट्रिक चार्ट वी फाइंड दैट द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द एयर एट 1 VS1 इज़ 0.883 मीटर क्यूब पर kg ऑफ ड्राई एयर। नंबर 1 पॉइंट पर हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम पता कर सकता है सीधे चार्ट देख करके, और H1 सीधा जो WBT की लाइन को आगे बढ़ा दिया हमने तो H1 निकल गया। H2 फिर ये WBT की लाइन को आगे बढ़ाया तो H2 निकल गया। अब वी नो दैट द अमाउंट ऑफ द एयर सप्लाइड मास कैसे निकलेगा। वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम हमको दिया 300 मीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 वॉल्यूम हो गया और वहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया 0.883। यहाँ से हमको निकल गया मास। नाउ अमाउंट ऑफ हीट एटेड मास इंटू H2 माइनस H1 हमको मालूम है। यहाँ से सीधा हमने निकल दिया 339.75 इंटू 80.4 माइनस 76, ये हमारा आ गया मास। ठीक है, अब कहते हैं फाइनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी फ्रॉम द साइक्रोमेट्रिक चार्ट वी फाइंड दैट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट पॉइंट 2 इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी पॉइंट 2 पर सीधा हम देख सकते हैं चार्ट के थ्रू 39%। वेट बल्ब टेम्परेचर फ्रॉम द साइक्रोमेट्रिक चार्ट वी फाइंड दैट द वेट बल्ब टेम्परेचर एट पॉइंट 2 वो भी डायरेक्टली हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम WV2 नहीं निकल गया यहाँ से हमारा। तो हमने सभी चीज़ निकाल लिया जो चीज़ इन्होंने मांगा था TW2 phi2 और उसके बाद अमाउंट ऑफ हीट एडेड, ये हमने तीनों चीज़ से निकाल लिया। अगला न्यूमेरिकल फिर देखें आप। द एयर इंटर ए डक्ट एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 80% RH। 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 80% RH, ये हमारा 0.1 डायरेक्ट मार्क हो जाएगा एट द रेट ऑफ 150 मीटर क्यूब पर मिनट एंड इज़ हीटेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट एडिंग और रिमूविंग एनी मॉइस्चर ऐड नहीं कर रहे हैं। इसमें सेंसिबल हीटिंग हुआ है। द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एट 1 एटमॉस्फेयर। डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर एट द एग्जिट फ्रॉम द डक्ट एंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो अब फिर उसी तरीके से हम चलेंगे। हमको दिया हुआ TD1 दिया हुआ 10 डिग्री, phi1 दिया हुआ 80%, V1 दिया 150 मीटर क्यूब पर मिनट, TD2 30 डिग्री, फिर P इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार हो गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर एट द एग्जिट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर एट द एग्जिट। फर्स्ट ऑफ ऑल mark the initial condition of the air at 10 degree centigrade dry bulb temperature and 80% relative humidity on the psychrometric chart at point 1। ये point 1 पर निकाल लिया हमने, मार्क कर लिया as shown here। Since air is heated to 30 degree centigrade without adding any moisture, therefore it is a case of sensible heating 1 to 2। Draw a constant specific humidity line from 1 to intersect the vertical line drawn at 30 degree centigrade dry bulb temperature at point 2। The line 1 2 represents sensible heat of the air। 1 2 sensible heat of the air हो गया। From the psychrometric chart we find that the relative humidity of the air at exit at point 2 phi2, या तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं चार्ट से। Now rate of heat transfer from the psychrometric chart we also find that the specific volume of the air at point 1 VS1 0.81 meter cube per kg of dry। everything is known from the chart and enthalpy डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 26 किलो जूल पर kg of dry air। उस तरह से H2 पे निकाला दूसरा पॉइंट का जो है हमारा अनदर पॉइंट जो है हमारा उसके बारे में, उससे हम H2 निकाले और फिर मास निकाले V1 अपन VS1। V1 हमको दिया हुआ 100
150 मीटर क्यूब दिया हुआ है और VS1 हमको चार्ट से मालूम हो गया, सीधा हमने निकाल दिया मास निकल गया। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र मास इंटू H2 - H1 जो कॉइल है वो सेंसिबल हीटिंग कर रहा है, तो उससे हमारा हीट ट्रांसफ़र पूरा निकल गया। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। अगेन एटमॉस्फेरिक एयर विद ड्राई बल्ब टेम्परेचर 28 डिग्री, ड्राई बल्ब टेम्परेचर at 28 डिग्री एंड wet bulb temperature at 17 degree is cooled to 15 degree without changing the moisture content. Find the original relative humidity and final relative humidity and final wet bulb temperature. बहुत सिंपल है, TD1 दिया हुआ, TW1 दिया हुआ, TD2 दिया हुआ। द इनिशियल कंडीशन ऑफ एयर 28 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 17 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर मार्क कर लिया हमने सीधा 1.28 डिग्री और 20 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर पर 17 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर पर ये पॉइंट निकल गया हमारा। ठीक है, नाउ बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन द मॉइस्चर कंटेंट सो मीट 15 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट पॉइंट 2। मॉइस्चर कंटेंट में कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, वो 15 डिग्री की लाइन को आकर 2 पॉइंट पर कट कर देंगे। तो इस तरह से हमको 1 पॉइंट मालूम हो गया, 2 पॉइंट मालूम हो गया। अब ये सेंसिबल कूलिंग का लाइन है, चूँकि 1 से 2 टेम्परेचर कम होता जा रहा है, इसलिए सेंसिबल कूलिंग का लाइन है। तो इस तरह से हमें सेंसिबल कूलिंग का लाइन हमको मिल गया। अब कह रहा है कि ओरिजिनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पहले 5.1 पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, चार्ट से देखा 34%, फिर फाइनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखा 0.2 पर 73%, फिर फाइनल वेट बल्ब टेम्परेचर वो हम कैसे देखेंगे, यहाँ से जो वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन पास हो रही है उसकी करस्पॉन्डिंग में वेट बल्ब टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा, दैट इज TW2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉइस्ट एयर इज हीटेड बाय स्टीम कंडेंसिंग इनसाइड द ट्यूब ऑफ ए हीटिंग coil shown in figure. The part of the air passes through the coil and part bypasses around the coil. The barometric pressure 1 bar determine the air per minute in 3 which bypass the coil 2 and the heat added by the coil. अभी कह रहे हैं the amount of air supplied MA may also be obtained. MA की वैल्यू निकालने का तरीका बता रहे हैं, ये सिर्फ मतलब नहीं हमारा न्यूमेरिकल से। तो हमारा न्यूमेरिकल ये है आपका कि हमारा ये कॉइल है, ये एयर है पास कर रहा है, तो कुछ एयर तो बाईपास करेगा, कुछ एयर जो है वो हमारा डायरेक्ट इसके पास आ जाएगा। तो हमें दिया क्या है, MA की वैल्यू दी है 60 kg पर मिनट। न्यूमेरिकल में देखा जाए ठीक है। तो MA की वैल्यू हमको जो है द अमाउंट ऑफ MA में आल्सो भी ऑब्टेन निकाल सकते हैं MA की वैल्यू हम। तो MA की वैल्यू जो है हमें 60 kg पर मिनट दिया है। TD1 की वैल्यू दिया 55 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 5.1 दिया 100, 5.3 दिया 20 और TD2 दिया हुआ है 24। फर्स्ट ऑफ ऑल द इनिशियल कंडीशन ऑफ एयर ड्राई बल्ब टेम्परेचर 5 and 100% relative humidity is marked on 0.1 मार्क किया हमने और द साइक्रोमेट्रिक चार्ट है शोन। कंसिडर 1 kg of air being admitted at 0.1, ठीक है, at 0.1 let x kg of air bypasses unaffected while the remaining 1 minus x kg passes over the heating coil. The heating coil raises the temperature of air by dry bulb temperature TD3 at 0.3, ठीक है। The relative humidity at 0.3 is given as 20% हमको दिया हुआ। The unheated or bypass air is mixed with the heated air to obtain the final condition of air at 0.2। एक हीटिंग एयर है, एक कूल्ड एयर। ये कूल्ड एयर हीटिंग एयर को मिला करके फाइनल यहाँ पर 0.2 पर जो है हमारा फाइनल एयर बन रहा है। द ड्राई बल्ब टेम्परेचर TD2 24, the condition of air at 0.2 and 3 is obtained by drawing constant specific humidity line 1 which intersect the vertical line at TD2 at 24 टेम्परेचर दे रहा है TD2 का, उसको आगे बढ़ा दिया और कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन से कट किया हमने 0.2 पर एंड 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन एट 0.3, 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन एट 0.3। देन फ्रॉम द साइक्रोमेट्रिक चार्ट we find that dry bulb temperature of air leaving the heating coil at 0.3,
30.8, एंथैल्पी एट 0.1 H1, एंथैल्पी एट 0.2 H2, एंथैल्पी एट 0.3 H3। सब कुछ हमको मिल गया। x की वैल्यू हमको चाहिए। अब ये प्रोसेस जो आपका हीटिंग कॉइल है, हीटिंग हो रहा है 1 से 2 की तरफ हीटिंग हो रहा है, तो TD3 की वैल्यू ज़्यादा होगी। TD3 माइनस TD2 डिवाइडेड बाई TD3 माइनस TD1। TD3 की वैल्यू ज़्यादा है आपके, ये कूलिंग हो रहा है, कूलिंग। TD3 की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो TD3 माइनस TD2 डिवाइडेड बाई TD3 माइनस TD1। वहाँ पर हमने वैल्यू लिख दिया 6.8 डिवाइडेड बाई 25.8, ये वैल्यू आ गई 0.264। तो फिर एट विच बाईपास द कॉइल x इंटू MA की वैल्यू हो गई तुम्हारी, x तो हमको मालूम है 0.264 दिया हुआ है हमको x की वैल्यू। एयर बाईपास फैक्टर x इंटू MA की वैल्यू हो गई। बाईपास फैक्टर अभी हमने निकाला है, तो ये से हमने निकाल दिया इसको लेकर के। तो हमारे पास एयर विच बाईपास द कॉइल इज गिवन बाई 15.84। ओके, नाउ हीट एडेड बाय द कॉइल। अब हीट कितना ऐड हो रहा कॉइल से? वी नो दैट द हीट एडेड बाय द कॉइल MA इंटू H2 माइनस H1। तो MA हमको मालूम है, H2 माइनस H1 भी मालूम है, सीधा हमने वैल्यू लिख दिया, निकाल दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अनदर मोर न्यूमेरिकल इज देयर, दैट इज the atmospheric air at 760 mm of mercury. Mind it, 760 mm of mercury, that is 1 bar. Dry bulb temperature 15 degree and wet bulb temperature 11 degree. Enters a heating coil whose temperature is 41 degree. Assuming the bypass factor of the heating coil 0.5, determine the dry bulb temperature, wet bulb temperature and relative humidity of the air leaving the coil. Also determine the sensible heat added टू द एयर पर kg ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें पता करनी है। तो गिवन क्या क्या गिवन अब हमारे पास से ये देखना पड़ेगा। गिवन PB इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी, दैट इज़ योर 760 mm, दैट इज़ 1 बार स्ट्रेट अवे। TD1 दिया हुआ 15, TW1 दिया हुआ 11, TD3 दिया 41, बाईपास फैक्टर 0.5। The initial condition of air entering the coil at dry bulb temperature 15 degree centigrade and wet bulb temperature 11 degree centigrade is shown as the 0.1 on cytometric chart। ये हो गया 15 डिग्री और 11 डिग्री तुम्हारा वेट बल्ब टेम्परेचर है, तो यहाँ कट किया 0.1 हो गया। 15 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर, 11 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, नाउ ड्रॉ ए कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन 0.1 टू इंटरसेक्ट द वर्टिकल लाइन एट 41 डिग्री से। एट 41 का टेम्परेचर ये हुआ, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन सीधा खींचे कहीं कट करेगा, ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, 0.3 दैट इज द कॉइल टेम्परेचर। वर्टिकल लाइन 41 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.3 द 0.2 लाइज ऑन लाइन 13। ठीक है, हीटिंग कॉइल टेम्परेचर हमको 41 दिया हुआ है। तो अब उसके बाद हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर लिविंग द कॉइल, जो कॉइल को लीव कर रहा है उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर TD2 मान लिया, वो TD2 है जो कि कॉइल को लीव कर रही है। हीटिंग हो गया, तो हमारा दिया हुआ बाईपास फैक्टर, यू नो दैट TD2 इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर विच इज लिविंग द कॉइल। नाउ बाईपास फैक्टर इज गिवन TD3 माइनस TD2 डिवाइडेड बाई TD3 माइनस TD1। सो TD3 हमारा दिया हुआ 41, TD2 निकालना है हमको, तो TD3 और TD1 दोनों मालूम है, हमने इसको रखा है यहाँ पर, और यहाँ से हमने सीधा TD2 की वैल्यू जो है वो हम निकाल लेते हैं। TD2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर लीविंग द कॉइल, अब वेट बल्ब टेम्परेचर जो कॉइल लीव कर रहा है उसका टेम्परेचर। फ्रॉम द साइकोमेट्रिक चार्ट वी फाइंड दैट द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एयर लीविंग द कॉइल टू TD2 डायरेक्टली हमने निकाल लिया यहाँ से। वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन जो क्रॉस कर रही है उससे हमने वेट बल्ब टेम्परेचर सीधा सीधा निकाल लिया इसका। ठीक है, उसके बाद हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर लिविंग द कॉइल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5.2 निकल जाएगा सीधा सीधा, जो यहाँ से रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन जो कट करेगी वहाँ से सीधा निकल जाएगा। फिर सेंसिबल हीट एडेड टू द एयर पर kg ऑफ ड्राई एयर, पर kg ऑफ ड्राई एयर कितना सेंसिबल हीट ऐड हो रहा है,
Then from the psychrometric chart you find that the enthalpy of air at पॉइंट टू पर एंथैल्पी एयर का कितना है, देख लिया हमने। H2 सीधा सीधा निकाल लिया, सीधा सीधा H2 निकल गया। तो H2 इज़ 46 किलो जूल पर के जी ऑफ ड्राई एयर, सीधा से WBT की लाइन से। और एंथैल्पी ऑफ एयर एट 0.1 H1 डायरेक्ट हमने इसको भी देख लिया चार्ट से। तो सेंसिबल हीट एडेड टू द एयर इज़ गिवन बाई H2 - H1, 46 - 31.8 दैट गिव 14.2 किलो जूल पर के जी ऑफ ड्राई एयर। दिस वॉज द आंसर। ओके, so in that way so many numericals have been done for you, and it must be very clear to everyone. Okay, thank you.